Hello friends, we have some around 40 days left for your CAT, and this is a time when many students are faced with this unique problem that mock scores have hit the plateau at respective level. मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को डायलेमा हो रहा है कि क्या करें. अगर मैं स्पीड बढ़ाने गया, when I attempted more, so then possibly my negatives will go down, or sorry, my negative will go up and I will demotivated, ठीक है. And if I do not increase my speed, कोई फायदा नहीं होगा, तो क्या करें, ठीक है. What is to be done? So दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व करना है. दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ इज, क्या आप अपना मॉक ऑटो पायलट मोड में लिखते हैं? विच मीन्स क्या आप जब मॉक लेने बैठते हैं, ठीक है, तो क्या आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं? ठीक है दोस्तों, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ओके, स्पेशली समथिंग लाइक मॉक. ओके, सो वन इज यू आर कंफर्टेबल इन अटेम्प्टिंग सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू आर कंफर्टेबल इन अटेम्प्टिंग सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप उन्हीं को अटेम्प्ट करते हैं. और दूसरा तरीका है कि एकदम पूरे जोश के साथ, पागलपंती के साथ, पूरे एनर्जी के साथ उसको अपीयर करना. इट इज लाइक यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, यू आर मूविंग एट अराउंड 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, विच इज नॉर्मल फॉर एवरीवन एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी कंफर्टेबल. हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा नहीं चाहिए. पर अगर हम ज्यादा स्पीड पे जाते तो हमारा फोकस, हमारी इंटेंसिटी, हमारा कंसंट्रेशन तेज चाहिए. सो बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग यू इज टू इंक्रीज योर इंटेंसिटी. ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब फोकस, एनर्जी, मतलब एकदम ताकत के साथ उसको अटैक करना. नाउ द पॉइंट इज कि क्या मैं इंटेंसिटी के साथ काम करूं तो मेरा काम हो जाएगा? दैट्स अ हाफ ऑफ द वर्क. ठीक है, सो बाकी का काम कैसे करना पड़ेगा? लेट्स सी वन बाय वन. सो लेट मी टॉक अबाउट VARC फर्स्ट. ठीक है दोस्तों, VARC में बहुत बार हम उस इंटेंसिटी के साथ आरसी के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते हैं. सो वी हैव टू डू वन थिंग, दैट वी हैव टू टाइटन अप ourselves, we have to increase our focus. On RC questions, you are getting most of the direct and specific questions right. But the moment when it comes to, you can say, inference or indirect questions, I'm sure you know that you have to show a lot of depth. Okay? And then either you are committing mistake or you are leaving those questions. Okay? So if you have to squeeze out more from your RC questions, you have to tighten up your preparation and you have to apply your capabilities on tougher questions. You might have reached a stage of, you can say, a situation where you need to make big shots. ठीक है, this is a time where you have to take big shots. ठीक है, taking singles will not be sufficient. Now what do you mean by big shots? Solving those tougher questions. ठीक है, now how do I do it? Now you ask yourself that, look, do you pause at the end of the passage and try to paraphrase the main idea? If not, start doing it. Do you pause at the end of a question? Okay, try to frame in the mind that what is the approach I have to apply, you can say, to attack on these questions. So if you have been doing this, great. If you are not doing it, start doing it. Okay, that will improve your score. And if you have been doing it, okay, then possibly the one of the reason why you are stuck at a particular score is your reading speed may not be very good. So this is the right time to increase your reading speed. दोस्तों, do not get scared, है ना, डरो मत, है ना, फियर मत लाओ आपके मन में कि अरे मैं स्पीड में पढ़ूंगा, कंसंट्रेशन मेरी बिगड़ जाएगी. धीरे धीरे पक्का काम हो जाएगा, अगले कुछ दिनों में तो पक्का ही हो जाएगा. Yes or no? So दोस्तों, it will not be very comfortable to start with. ठीक है, but if you want to make comfortable yourself with your greater score, these are the methods you have to work on. Coming to DILR, ठीक है, teach your brain new approaches, new mathematical reasoning to, you can say, attack on this DILR. So with DILR, many of you aspirants, you say that, you can say, we have a, you can say, hang off certain type of, you can say, questions like, you can say, certain type of questions we are able to do like DI or certain type of selection. But believe me, in the next 40 days, if you have to score more on the D day, ठीक है, in next 40 days,
try to complete 21, 20, 2019, 2018, 2017 के DILR and try to do it in 40-minute time. In 40 minutes, try to complete at least 4 to 5 sets. ठीक है, try to, you can say, give 10 minutes per set. ठीक है, after doing this, sit for an hour or more to analyze all this DILR question. क्या आपको अलग अलग तरीके के नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन करना आता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रेशियो, कैन यू डू दैट? ग्रेट. ठीक है, अगर आपको लगता है दैट देयर आर 5 सेल्स एंड दे हैव सम पॉसिबिलिटीज, ठीक है, अगर अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज है तो क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन मेथड, है ना. देयर आर सो मेनी मेथड. ठीक है, यू विल फाइंड दैट आपके पास शायद अभी लिमिटेड अप्रोचेस है. ठीक है, बट इफ यू आर फेस्ड विथ लॉट ऑफ, you can say, good mathematical reasoning based set, ठीक है, आपके ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करना जरूरी है ताकि there are so many, you can say, possibilities are available. ठीक है, if you spend enough time with solutions of at least, you can say, this 10 DILR sections जो मैंने previous year के पेपर के बारे में आपको बताया, then it will definitely teach you newer mathematical reasoning methods and you will change your DILR game for sure. ठीक है, now coming to your quant questions. Quant में, है ना, that's a very interesting thing कि so many of you, है ना, who are liking quant, that's why you are preparing for your, you can say, CAT. ठीक है, you score decent marks comfortably as well, बराबर है. But can you do better in terms of your core QA capability? If yes, ठीक है, are you doing it? Are you happy with your QA score? If yes, then can you see how the other people are getting the score? So the point is, my aim is to get bigger score than what I am getting. Okay, ठीक है. Now, if I try to increase my intensity, as we started initially, हमने बात कहाँ से चालू करी? हमने बात इसी से चालू करी कि हमें इंटेंसिटी इंप्रूव करनी है. अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी इंप्रूव करने के लिए, तो क्या ये इंटेंसिटी से काम हो जाएगा? शायद यस. इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? Reading it at a faster pace, solving questions at a faster pace, writing fewer steps, not writing whole questions. Wonderful thing. ये आपको इतना मदद करेगा कि आप ये ध्यान रखेंगे कि आप कम समय में काम कर पाएंगे. कभी कभार आप ऑप्शन देखकर एक से काम कर पाएंगे. लुक एट द टॉपर्स, एक से कैलकुलेशन. दे डोंट राइट लॉट ऑफ थिंग्स, दे जस्ट सिंपली स्किप, you can say, so many sentences, they do it in their mind. ठीक है. Another important tip which I can give it to you is look at the options. Many times you are looking at the options and then you can approximate, you can eliminate, you can say some of the options. That's what you have to carry out. So you may not be able to solve, you can say, a lot of questions by this method, जो method मैं आपके सामने बता रहा हूँ. सही बात है. Obviously सभी questions में ऐसा नहीं होता है, पर अगर आप ये 4 से 6 questions में भी अप्लाई कर पाए, अगर सिचुएशन आई तो, ठीक है, अगर आप अप्लाई कर पाए, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. इट इज लाइक इन अ क्रिकेट मैच. ठीक है, अगर आप, यू कैन से, मैच देखते हैं और आपने देखा हो कि आउट ऑफ लेट्स से 20 ओवर्स देयर मे बी सम 10 or 12 बॉल्स आर देयर जहां पे बैट्समैन, यू कैन से, गोज फॉर सम अनकन्वेंशनल शॉट्स. ठीक है, वही अनकन्वेंशनल शॉट्स है दोस्तों जो, यू कैन से, स्कोर बड़ा लेके जाता है. कभी कभार ऐसा भी होता है कि यह अनकन्वेंशनल शॉट का तरीका ही एक रेगुलरिटी बन जाती है. सो दोस्तों, ट्राई एंड अप्लाई सर्टन अनकन्वेंशनल मेथड्स. ज्यादा स्कोर उन अनकन्वेंशनल मेथड से आने वाला है, यह ध्यान रखिए. यस और नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी भी आपके पास स्कोप अवेलेबल है. किस चीज का स्कोप अवेलेबल है? अभी भी आपके पास स्कोप अवेलेबल है. ट्राई टू इंक्रीज योर स्कोर बाय लर्निंग न्यू मेथड, न्यू कंसेप्ट्स. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. समझो, ये देखो, आप में से बहुत सारे लोग, आपको जो कंफर्टेबल टॉपिक है, जो कंफर्टेबल क्वेश्चंस है, ज्यादातर आप वही क्वेश्चन सॉल्व करते हो. ठीक है, जब भी कोई अनकंफर्टेबल एरिया होता है, ठीक है, आप उसको सॉल्व नहीं करते, तो मेक श्योर that you do those uncomfortable area as well. कभी कभार uncomfortable area के जो questions होते हैं वो बहुत easy हो सकते हैं. So be prepared in that region. Be prepared for that way as well. So in general sense, I'm saying take risk,
ठीक है, फॉर योर काउंट, है ना, लुक एट द ऑप्शंस, लुक एट क्विक मेथड्स, ठीक है, डोंट कैरी आउट फुल calculations, that's one, ठीक है, try to solve from the options, so that is very important. So in a way, let me tell you, let me define this as, I can say, going out of the box, very important, ठीक है. Now I'm not telling you, है ना, by doing such kind of thing, I'm not telling you taking mindless way में risk taking is very important. Taking in a mindless way is definitely not okay, ठीक है. So दोस्तों, mindless way में इसको नहीं करना है ना. ऑन एन एवरेज, जैसे आप मैच में देखते होंगे कि रिवर्स स्वीप में यू कैन से 6 लगाना या बाउंसर बॉल आए उसको सिर्फ टच कर देना, ये सब चीज़ों का रिस्क लेने के लिए जो यू कैन से बैट्समैन होता है वो देखता है आजू बाजू की पूरी दुनिया कि किधर किधर फील्डर अवेलेबल है, ठीक है. अगर फील्डर कम है जिस जगह पे, वहां पे रिस्क लेते हैं, ठीक है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दूसरा पॉइंट मैंने बोला दैट मेनी ऑफ यू आर स्टिल, यू कैन से, नॉट डूइंग 1 or 2 एरियाज ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयरबाय यू आर एंडिंग अप स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द टफर क्वेश्चंस ऑफ योर फेवरेट एरिया, ठीक है. समथिंग विच इज नॉट योर फेवरेट मे बी easy question but you are leaving it, yes or no. So my suggestion is revise all your QA questions from previous year CAT question paper, go through them to look at an easy questions from the area where you are not comfortable with, ठीक है. आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, वहां के इजी क्वेश्चंस देखिए और बी रेडी फॉर इट. दोस्तों रिमेंबर, आप एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचे हैं, अब आपको एक बड़ा जंप करना बड़ा जरूरी है, ठीक है. इट विल टेक मोर आउट ऑफ योर मेंटल गेम, ठीक है, एंड देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है. टेक, यू कैन से, लॉट ऑफ मॉक्स, approximately 20 mocks in the last few days, ठीक है, with full intensity, ठीक है, and make sure that whatever I have discussed here you follow it. You need to get used to performing at your optimum level. This optimal level does not mean a number in terms of your score. It means if the test is really easy, you hit it out, get great score. If it is tough, ठीक है, then you just try and manage the cutoff, ठीक है. दिस इज वेरी क्रूशियल दोस्तों. अगर आपको ये पसंद आता है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए. आपके मन में और कोई क्वेरी हो जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कवर दैट. ओके, थैंक यू.